and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Lasit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964. It is part 4, and in this part, I will discuss Rule 14 to Rule 15A. Rule 14, public demonstrations in honor of government servants. Rule 15, private trade or employment. Rule 15A, subletting and vacation of government accommodation. In this part, I will discuss 25 MCQs and also pattern of descriptive questions, and also each and every rule I will explain very briefly. Any layman can understand, so that definitely the session would be interesting one. And also I have prepared MCQs, latest pattern MCQs, so that easily you can attempt that type of question in the examination. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. This part definitely would be useful for all central government exams. Okay, and join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you contact with me and clear your doubt. My Telegram channel link, first Telegram channel link, t.me/BAPI2034, and second Telegram channel also t.me/ASIT2034. So try to join so that you can up to date yourself for my upcoming videos. So I am going to discuss part 4, CCS Conduct Rules 1964. Today I will discuss Rule 14 to 15A. First you see the Rule 14. Rule 14, it is public demonstrations in honor of government servants. Right? So rule position is very important one. It is public demonstrations in honor of government servants. So first one, I will discuss what government servants cannot do without government's prior permission. गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, अदरवाइज गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी फॉलोइंग जो एक्टिविटीज है द गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट डू. सो वन बाय वन आई विल डिस्कस. फर्स्ट वन, कैनॉट रिसीव पब्लिक ऑनर्स. राइट? सो दे कैनॉट रिसीव एनी पब्लिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रेज, ऑनर और स्पेशल एड्रेसेस मेड इन देयर नेम विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. You know, some complimentary address is there. Complimentary address, actually in that address, suppose praise to the government servant, praise to the service of the government servant. Suppose any organization invite you and you go there and they praise you, they praise your work, they praise your service, but it should not be happened actually without government approval. You should not join that program. Suppose any organization suppose organize any function and honor to the government servant, it is not possible without government approval. और ये वैलिडिक्टोरी सेरेमनी, सपोज वैलिडिक्टोरी एड्रेस है कोई, जैसे वैलिडिक्टोरी एड्रेस में क्या होता है, स्पीच होता है, एक फेयरवेल स्पीच होता है. सपोज आपका सुपर अन्वेषण है, रिटायरमेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको बुलाया और उसमें आपको आपका सर्विस को प्रेज किया, आपको कुछ ऑनर किया, कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स दे दिया, जैसे मोमेंटो है कि सपोज कुछ सेरिमोनियल साल है, ठीक है, कोई भी आपको गिफ्ट दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल. ठीक है, फर्स्ट वन, कैन नॉट रिसीव पब्लिक ऑनर्स. ठीक है, राइट, इट इज फर्स्ट वन. सपोज your work is meritorious one and your job is excellent one and you have provided excellent service and very immaculate service, very worthy service. So basically the government can recognize your service and provide reward to you. But any organization invite you and you go there and they honor you, they praise you, okay, and they provide gift to you. So actually it should not be happened without government approval. यदि गवर्नमेंट अप्रूव करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर विदाउट गवर्नमेंट परमिशन आप ये सब फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते. ठीक है, ये फर्स्ट वन है. सेकंड वन, कैनॉट एक्सेप्ट टेस्टिमोनियल्स.
कैनॉट एक्सेप्ट टेस्टिमोनियल्स, जैसे सर्टिफिकेट है कि मेमेंटो है कि और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन गिवन पब्लिकली इन देयर ऑनर अनलेस परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो आप कोई भी टेस्टिमोनियल्स रिसीव नहीं करेंगे। ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, चाहे कोई पब्लिक बॉडी हो, चाहे कोई सपोज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको इनवाइट किया और उसमें कुछ सर्टिफिकेट दे दिया, मेमेंटो दे दिया और कोई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन किया, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अनलेस परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है तो आप ओके इस तरीके का फंक्शन अटेंड करके ये सब टेस्टिमोनियल्स को आप रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड वन है कैनॉट अटेंड फंक्शंस हेल्ड इन देयर ऑनर। तो आपका इट मीन्स ऑनर में सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे सपोज फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, ओके, तो इसमें क्लियरली दिया है दे कैनॉट अटेंड मीटिंग्स, गैदरिंग्स, सेरेमनीज और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स अरेंज्ड टू ऑनर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स और अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट विदाउट परमिशन। ठीक है, तो बेसिकली द गवर्नमेंट सर्वेंट should not attend any function okay on the name of his honor। आपका नाम पे कोई ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप अटेंड नहीं कर सकते। कि कोई एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, कोई एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑनर किया जा रहा है और उसमें आपको इनवाइट किया गया, तो ये नहीं हो सकता विदाउट परमिशन। ओके, आप कोई भी इस तरीके का फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था, और एक बात देख लीजिए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव एनी कॉम्प्लीमेंटरी और वैलिडिक्टोरी एड्रेस और accept any testimonial or attend any meeting or entertainment held in his honor or in the honor of any other government servant। तो क्लियरली मेंशन है इसमें। आप देखिए जो 14 रूल 14 जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में है, रूल 14 में इसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी सपोज आपको कॉम्प्लीमेंटरी आपको इनवाइट किया और आप वहां पर जाके सपोज कोई कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस आपको कोई प्रेज किया, ठीक है, कोई प्रेज किया, आपका सर्विस को प्रेज किया कि आपका जो मेरिटोरियस सर्विस है उसको प्रेज किया, ये नहीं हो सकता। कोई वैलिडिक्टोरी एड्रेस, कोई आपका सपोज सुपरएनुएशन है, रिटायरमेंट की ट्रांसफर हो रहा है, उसमें कोई वैलिडिक्टोरी एड्रेस जो फेयरवेल एड्रेस में आपको प्रेज किया, ये नहीं हो सकता। आप कोई भी टेस्टिमोनियल्स रिसीव नहीं कर सकते, चाहे कोई मोमेंट हो कि चाहे कोई सेरेमोनियल गिफ्ट हो, आप रिसीव नहीं कर सकते। सिमिलरली आपका ऑनर के लिए कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज होता रहे, आप अटेंड नहीं कर सकते। तो ये रूल 14 बोल रहा है, सीसीएस कॉन्डक्ट रूल्स 1964। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये क्यों नहीं हो सकता? ओके, रीजन क्या है? सपोज कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, इस तरीके का फंक्शन आप अटेंड नहीं कर सकते। रीजन है क्योंकि इस तरीके का फंक्शन आप अटेंड कर रहे हो और फंक्शन में आपका ऑनर के लिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई आपको वैलिडिक्टोरी गिफ्ट देता है, कोई आपको कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस में प्रेज कर रहा है, तो इसमें क्या है, एक पब्लिक में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है और जाकर ये फंक्शन में गिफ्ट रिसीव कर रहा है कि उसको कोई प्रेज किया जाता है। तो ये सब चीज ना थोड़ा जो आपका इमेज, जो रेपुटेशन है, वो जो डिग्निटी आपका है, वो खराब हो जाता है पब्लिक में। सेकेंड वन क्या है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो ऑनेस्टी है, ओके, वहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से एक डिसिप्लिन है, आप ऐसे जाकर कोई आपका ऑफिशियल ड्यूटी with strong determination and with strong commitment actually you just render your service। तो outside of it means आपका ऑफिस आवर खत्म होने के बाद आप जा रहे हो, इस तरीके का फंक्शन अटेंड कर रहे हो, आपको कोई प्रेज कर रहा है, तो इसमें क्या है, तो एक में तो आपका पब्लिक इमेज खराब होता है, आपका रेपुटेशन, डिग्निटी खराब होता है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इसमें भी क्वेश्चन मार्क आता है। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट का डिसिप्लिन है, उसका जो
बेसिकली जो उसको एक चीज याद रखिए, उसका जो रेपुटेशन है उसका काम के साथ है। जाकर यदि आपका मेरिटोरियस सर्विस है उसको गवर्नमेंट प्रेस करेगा, ठीक है। आपको कोई अवार्ड फंक्शन, गवर्नमेंट का कोई अवार्ड फंक्शन में आपको प्रेस किया जाएगा। तो तो फास्ट में ये सब चीज को आपको अवॉइड करना है। मगर कुछ चीज में है, एक्सेप्शन है। दिस डू नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट परमिशन। यहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है। जैसे अदर केस में मैं बताया तो गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, यहाँ पर गवर्नमेंट परमिशन नहीं चाहिए। कोई आपका सपोज जैसे ट्रांसफर हो रहा है कि आपका सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसमें आपका कॉलीग्स ने प्राइवेटली, यहाँ पर प्राइवेट फेयरवेल फॉर रिटायरमेंट और ट्रांसफर इज अलाउड इफ कॉलीग्स अरेंज ए स्मॉल प्राइवेट इनफॉर्मल फेयरवेल फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रिटायरिंग, ट्रांसफरिंग और लिविंग सर्विस। इसमें परमिशन का जरूरत नहीं है। आपका ट्रांसफर हो रहा है कि आपका रिटायरमेंट है, ठीक है, कि आप सर्विस लीव कर रहे हो, तो इस केस में क्या है, आपका कॉलीग्स ने प्राइवेटली एक छोटा सा फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें कोई गवर्नमेंट का परमिशन जरूरत नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। और एक नेक्स्ट वन है कि कोई पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस आप देखिए, चाहे ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लोकल बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब आ जाता है। तो यदि वो कुछ पब्लिक एंटरटेनमेंट में सपोज सिंपल एंड ये इसको ध्यान दीजिए, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव public entertainments allowed if public bodies or institutions arrange a simple low cost non lavish entertainment, ओके, इस केस में गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत है। एक्सेप्टेंस इज अलाउड विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। यदि कोई पब्लिक बॉडीज, यहां पर देखिए सभी नहीं, पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस में बताया, पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस इसमें भी आता है। सपोज जो इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट फंड मिल रहा है, गवर्नमेंट का एड मिल रहा है, वो भी इसमें जाएगा। तो यदि वो कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और वो बहुत सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है, नॉन लविश एंटरटेनमेंट है, तो उस तरीका का फंक्शन को गवर्नमेंट सर्वेंट अटेंड कर सकता है, इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इनएक्सपेंसिव फंक्शन, फंक्शन इज वेरी सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ओके, एंड दिस फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस, और कोई नहीं, ऐसा प्राइवेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ओनली पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसको थोड़ा आपको देना है, ये दो चीज जो बताए एक्सेप्शंस में, इसमें गवर्नमेंट का परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहां पर देखेंगे। स्ट्रिक्टली फॉरबिडन, नो प्रेशर फॉर कंट्रीब्यूशंस। देखिए, यदि आप प्राइवेटली कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, गवर्नमेंट सपोज आपका कोई कलीग का ट्रांसफर हो रहा है और रिटायरमेंट हो रहा है, कि यानी ऑफ योर कलीग सपोज लीव द सर्विस, आप एक छोटा फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ठीक है, वेरी सिंपल इन एक्सपेंसिव नॉन लाविश टाइप ऑफ एक छोटा फंक्शन करना चाहते हो, इसमें किसको प्रेशर नहीं करना है, अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रेशर नहीं करना है कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है। तो नो वन शुड फोर्स और प्रेशर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टू कंट्रीब्यूट मनी फॉर ए प्राइवेट फेयरवेल पार्टी। मैं बार बार बताया, यदि कोई आपका गवर्नमेंट कलीग का ट्रांसफर है कि रिटायरमेंट है, आप छोटा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो वो एक प्राइवेट फेयरवेल पार्टी होता है और एक स्मॉल फंक्शन होता है, ठीक है। तो इस केस में आप जो अदर कलीग्स है उनको, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते आप कि आपको कंपलसरी कंट्रीब्यूशन देना है। और एक है, ये भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम लोअर रैंक एम्प्लॉइज फॉर सीनियर्स, क्लास 3 एंड क्लास 4 एम्प्लॉइज मस्ट नॉट बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट मनी फॉर द फेयरवेल ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। कोई सीनियर ऑफिसर्स का फेयरवेल में आप क्लास 3 क्लास 4 जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज से कोई मनी आप कंट्रीब्यूशन के आकार में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, याद रखिए। तो बेसिकली दैट इज ऑफिसर्स नॉट बिलोंग टू क्लास 3 क्लास 4, बेसिकली जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज है, यदि कोई सीनियर ऑफिसर का फेयरवेल फंक्शन है, आप कुछ मनी कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो ग्रुप सी ग्रुप डी एम्प्लॉइज से, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज से आप मनी जो कंट्रीब्यूशन मनी एक्सेप्ट
नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी एक फॉरबिडन है। क्लियर? चलो, और ये था रूल 14 था, तो उसमें तो मैं क्लियरली बता दिया रूल 14 में। तो इसमें क्लियरली पता चला कि गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करेगा, कोई भी टेस्टिमोनियल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और यदि करते हो तो गवर्नमेंट परमिशन जरूरत है। विदाउट गवर्नमेंट परमिशन एनी गवर्नमेंट सर्वेंट cannot attend any valedictory complimentary function, okay, organized by any other organization, ki also the government servant it means the government servants do not receive also testimonials, ठीक है। तो ये सब चीज मैं बताया, और एक्सेप्शन से कहां पर गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है, ओके, विदाउट परमिशन आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है, वहां पर परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रूल 14 को मैं अच्छे से क्लैरिफाई किया। अभी रूल 15 को आ जाएंगे। रूल 15 में आप देखिए प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रूल 15 रूल पोजीशन को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो रूल 15 सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 वो प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। फर्स्ट है व्हाट गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन नॉट डू विदाउट प्रायर गवर्नमेंट परमिशन। ये जो भी आगे में जो एक्टिविटीज है, यदि उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट आप माने यू थिंक दैट माई इन्वॉल्वमेंट वुड बी देयर, देन गवर्नमेंट परमिशन चाहिए। विदाउट प्रायर गवर्नमेंट परमिशन यू शुड नॉट इन्वॉल्व, कि यू शुड नॉट लिंक विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज। देखेंगे तो इसमें कंपल्सरी प्रायर गवर्नमेंट परमिशन चाहिए। फर्स्ट वन, नॉट डूइंग बिजनेस और ट्रेड, ठीक है। यू कैन नॉट रन, ज्वाइन, सपोर्ट और इनडायरेक्टली एंगेज इन एनी बिजनेस। आप कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते, कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्टली वो बिजनेस में आप खुद को एंगेज नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सभी में प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का चाहिए, नहीं तो आप इस तरीके का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कि एंगेज नहीं हो सकते। क्लियर? सेकेंड वन, नॉट टेकिंग एनी अदर जॉब। आप जॉब में हो और कोई भी जॉब, ओके, आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट नेगोशिएट। अभी आप सपोज आप नेगोशिएट कर रहे हो अनदर जॉब के लिए, नेगोशिएशन नहीं होगा, ओके। और एक्सेप्ट एनी पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। आप अदर जॉब के लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते, कि एनी अदर पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आप खुद को एंगेज नहीं कर सकते। यदि एंगेज करना चाहते हो तो प्रायर परमिशन, प्रायर गवर्नमेंट परमिशन चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट परमिशन आपको चाहिए। यदि गवर्नमेंट परमिट करता है, अप्रूव करता है, तब आप कर सकते हो, ठीक है। मगर नॉट टेकिंग एनी अदर जॉब विदाउट प्रायर गवर्नमेंट परमिशन, ये जो भी पॉइंट है सब प्रायर गवर्नमेंट परमिशन, गवर्नमेंट का परमिशन पहले लेना है। नेक्स्ट वन, नॉट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इन एनी बॉडी। कोई भी बॉडी में आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। You cannot hold an elected post or campaign for any candidate in any organization, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, ओके। कोई भी इलेक्टेड पोस्ट आप होल्ड नहीं कर सकते, कि एनी अदर कैंडिडेट के लिए आप कैंपेन नहीं कर सकते, चाहे वो पब्लिक हो कि प्राइवेट हो, ठीक है। नो प्रमोटिंग इंश्योरेंस और कमीशन एजेंसी ऑफ फैमिली। यू कैनॉट कन्वर्स और सपोर्ट बिजनेस एक्टिविटीज लाइक इंश्योरेंस, कमीशन एजेंसी एटसेट्रा रन बाय योर फैमिली मेंबर्स। यदि कोई आपका फैमिली मेंबर्स सपोज इस तरीके का बिजनेस एक्टिविटी, इंश्योरेंस एक्टिविटी की कमीशन एजेंसी ये सब चला रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, इससे आप इसको आप अवॉइड करो। आप ये नहीं कर सकते। कोई भी फैमिली मेंबर आपका कोई इंश्योरेंस कंपनी चला रहा है, कोई कमीशन एजेंसी चला रहा है, और आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यदि उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो गवर्नमेंट का परमिशन लो। इस तरह का एक्टिविटी में गवर्नमेंट तो परमिशन नहीं देगा, मगर प्रायर परमिशन चाहिए। नेक्स्ट वन, नो इन्वॉल्वमेंट इन कंपनी और बैंक मैनेजमेंट, ओके, एक्सेप्ट ऑफिशियल ड्यूटी। तो कोई भी जैसे कंपनी है कि बैंक है, उसको मैनेज करना, उसका रजिस्ट्रेशन, उसको प्रमोट करना, ओके, ये नहीं कर सकते। यू कैनॉट टेक पार्ट इन मैनेजिंग, रजिस्टरिंग, ओके, और प्रमोटिंग एनी कंपनी, बैंक और कमर्शियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, ऑफिशियल ड्यूटी है, आप कर सकते हो, मगर एक्सेप्ट ऑफिशियल ड्यूटी
आप कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक का, चाहे वो उसका मैनेजमेंट हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे उसका प्रमोशन हो, आप और कोई कमर्शियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इस तरीका का सोसाइटीज, कंपनी और बैंक का ये जो मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन और प्रमोशन है, आप इसमें इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑफिशियल ड्यूटी के हिसाब से आप कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वन, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनदर वन, नो पार्टिसिपेटिंग इन प्राइवेट और स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम्स। अच्छा इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्राइवेट और स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सेम विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी है प्रायर परमिशन चाहिए, ये जो पॉइंट्स में डिस्कस सभी में गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, रेडियो और टीवी प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय आउटसाइडर्स, कोई आउटसाइडर्स रेडियो सपोज आपको इनवाइट कर रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज एक डॉक्टर को हम कोई प्राइवेट एजेंसी ने इनवाइट कर रहा है और हेल्थ टिप्स देने के लिए, और उसका रेडियो और टीवी प्रोग्राम में उसको इनवाइट कर रहा है, मगर वो कोई प्राइवेट बॉडी, कोई आउटसाइडर है, ठीक है, और वो आपको इनवाइट कर रहा है गवर्नमेंट डॉक्टर को, तो इसमें वो गवर्नमेंट डॉक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली कोई भी आउटसाइडर, कोई भी चाहे प्राइवेट कंपनी हो कि यानी प्राइवेट प्रोड्यूसर हो, ठीक है, चाहे आपका कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आउटसाइडर्स, सपोज एक गवर्नमेंट टीचर को बुला रहा है, जैसे एक रेडियो प्रोग्राम करेगा कि टीवी प्रोग्राम करेगा डिजिटल मिशन ऑफ इंडिया के ऊपर, ओके, तो गवर्नमेंट टीचर को वो इनवाइट कर रहा है, ठीक है, मगर ये भी नहीं हो सकता, इस केस में गवर्नमेंट टीचर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कमीशन्ड प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट एजेंसी। गवर्नमेंट कमीशन्ड प्रोग्राम है मगर प्रोड्यूस्ड बाय ए प्राइवेट एजेंसी। देखिए इसमें भी वही एक एग्जांपल मैं देता हूं, ये गवर्नमेंट कमीशन प्रोग्राम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है, मगर गवर्नमेंट क्या किया, एक प्राइवेट एजेंसी का हेल्प लिया कि आप उसको बेसिकली जो प्रोग्राम को पूरा टोटली आप मैनेज करो, मगर मैंने ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है मगर गवर्नमेंट किसको दे दिया, एक प्राइवेट एजेंसी का हेल्प लिया, तो वहां पर प्राइवेट एजेंसी क्या है, वीडियो करेगा, उसको एडिट करेगा, ठीक है, पूरा डिटेल्स, वो प्रोग्राम को पूरा मैनेज करेगा प्राइवेट एजेंसी। तो इस तरीके का केस में भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता विदाउट प्रायर अप्रूवल, प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोग्राम है नो डाउट, सपोज एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जैसे डेंगू मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, मगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट एजेंसी का हेल्प लिया और उसमें कोई एक गवर्नमेंट डॉक्टर को इन्वाइट किया कि आप आओ, वो प्राइवेट एजेंसी ने, क्योंकि वो गवर्नमेंट प्रोग्राम है मगर वो एक प्राइवेट एजेंसी को दे दिया, प्राइवेट एजेंसी ने क्या किया, गवर्नमेंट डॉक्टर को इनवाइट किया कि कुछ टिप्स देने के लिए, so it means what type of initiatives should be taken, it means to prevent the people from dengue की malaria like this, so what type of precautionary measures should be taken, तो ये सब चीज केस में तो गवर्नमेंट प्रोग्राम है मगर गवर्नमेंट कोई प्राइवेट एजेंसी का हेल्प लिया और वो प्राइवेट एजेंसी गवर्नमेंट डॉक्टर को इनवाइट कर रहा है, तो इस तरीके का केस में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए। और क्या है, एनी प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मीडिया प्रोग्राम, वीडियो मैगजीन क्या है, एक सपोज पूरा एक प्रोग्राम, सपोज कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इसका वीडियो बनाया गया, एक डॉक्यूमेंटरी बनाया गया, जो वीडियो मैगजीन में से एक डॉक्यूमेंटरी है, ठीक है, डॉक्यूमेंटरी है वो, मगर वो डॉक्यूमेंटरी एक प्राइवेट एजेंसी ने डॉक्यूमेंटरी बना के वो सपोज उसको वो टेलीकास्ट होगा टेलीविजन में, कि वो टेलीकास्ट होगा रेडियो में, ठीक है, तो इस तरीके का भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, आज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये सब चीज को आपको अवॉइड करना है, क्लियर। अच्छा, इफ यू पार्टिसिपेट ऑफिशियली इन ए गवर्नमेंट मीडिया प्रोग्राम, कोई गवर्नमेंट मीडिया प्रोग्राम है ऑफिशियली, तो इसमें कोई प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है, इफ यू पार्टिसिपेट ऑफिशियली इन ए गवर्नमेंट मीडिया प्रोग्राम नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, ये एक्सेप्शन है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा इसमें सब प्रायर परमिशन नहीं चाहिए, व्हाट गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन डू विदाउट परमिशन। फर्स्ट केस में जो भी मैं डिस्कस किया
उसमें प्रायर परमिशन गवर्नमेंट का चाहिए। मगर अभी जो देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट एंगेज एंड इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज बट विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए। फर्स्ट वन, डू ऑनररी सोशल और चैरिटेबल वर्क। आप कोई सोशल और चैरिटेबल वर्क कर रहे हो तो उसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल हेल्पिंग एनजीओ विदाउट पेमेंट, इसमें कोई आपका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। आप जो सोशल और चैरिटेबल वर्क कर रहे हो उसमें तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, तो ये तो फ्री वॉलंटरी सर्विस है, तो उसमें कोई परमिशन जरूरत नहीं है गवर्नमेंट का। कि आप कोई डू ऑकेजनल लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। लिटरेरी में कुछ आप आर्टिकल्स ऑकेजनली इन ऑकेजनली यू आर राइटिंग आर्टिकल्स, कि यू आर मेकिंग पेंटिंग, कि एनी साइंटिफिक लेक्चर्स, गिविंग साइंटिफिक लेक्चर्स ऑकेजनली, तो इसमें कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज कर रहे हो उसमें आप कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहे हो, तो ऑकेजनली कर रहे हो, नॉट रेगुलर। समटाइम्स चाहे कोई लिटरेरी एक्टिविटी, कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी और कोई साइंटिफिक वर्क आप कर रहे हो, मैं एग्जांपल दिया, तो इस तरीके से गवर्नमेंट का परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, प्ले स्पोर्ट्स एज एन आमेचर। आमेचर मीन्स क्या है, आप प्रोफेशनल नहीं हो, एक नॉन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इज अलाउड। तो प्ले स्पोर्ट्स एज एन आमेचर, नॉन प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल तो नहीं हो, आप नॉन प्रोफेशनल हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें परमिशन का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट नॉन इलेक्टेड रोल्स ऑफ कल्चरल, साइंटिफिक और रिक्रिएशनल सोसाइटीज और क्लब्स। देखिए ये जो है सम रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, कुछ क्या है कल्चरल रजिस्टर्ड सोसाइटीज। कल्चरल में क्या है, जैसे चाहे कोई आर्ट है कि म्यूजिक है कि डांस है, इस तरीका का कल्चरल रजिस्टर्ड सोसाइटीज एक्चुअली रजिस्टर्ड। तो कल्चरल रजिस्टर्ड सोसाइटी, तो मैं बताया कल्चरल रजिस्टर्ड सोसाइटी में क्या है, चाहे रिलेटेड टू सपोज ड्रामा की, आर्ट की, म्यूजिक, ओके, इसमें क्या है आपका कोई नॉन इलेक्टेड रोल, आप कोई इलेक्टेड, आपका कोई माने आप इलेक्टेड मेंबर नहीं हो, आप जाकर क्या है उसमें पार्टिसिपेट करके उसको, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका प्रमोशन और मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो, उसमें तो कुछ आपका मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है। और उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब, ये जो कल्चरल एक्टिविटी, चाहे ड्रामा हो, चाहे आर्ट हो, चाहे म्यूजिक हो, तो उसमें चाहे बेसिकली स्टूडेंट्स कि एनी अदर पीपल दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड गेटिंग बेनिफिट्स, तो उसमें आप नॉन इलेक्टेड रोल, नॉन इलेक्टेड मीन्स आप कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं हो, तो इस तरीके का केस में जब आप इन्वॉल्व होते हो तो परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर विद इन 1 मंथ आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ये याद रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परमिशन का जरूरत नहीं, मगर विद इन 1 मंथ आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और बेसिकली ये जो है एक्टिविटीज क्या है, फर्स्ट है कल्चरल, नेक्स्ट वन है साइंटिफिक सोसाइटीज की, साइंटिफिक क्लब्स, उसका चाहे रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट, आप इलेक्टेड मेंबर नहीं हो, कोई साइंटिफिक सोसाइटी है, कोई साइंटिफिक क्लब है, उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट के लिए आप इट मीन्स आप रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके के केस में परमिशन का जरूरत नहीं है, मगर विद इन 1 मंथ यू मस्ट रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। और कोई रिक्रिएशनल सोसाइटीज है, ठीक है, तो इस केस में याद रखिए कल्चरल, साइंटिफिक और रिक्रिएशनल सोसाइटीज और क्लब्स, इसमें आपका जो पार्टिसिपेशन है उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट के लिए है, मगर आप इलेक्टेड मेंबर नहीं हो, ठीक है, और उसमें आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, मगर सिंपल खाली ये स्टेटमेंट को याद रखो, आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन इलेक्टेड मेंबर, आप इलेक्टेड मेंबर नहीं हो। सिमिलरली देखिए, पार्टिसिपेट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट नॉन इलेक्टेड रोल्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंट मोस्टली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए यहां पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, मगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो मोस्टली बेसिकली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बेसिकली जो बेनिफिट होता है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इसमें आप यू आर नॉट द इलेक्टेड मेंबर, तो उसका रजिस्ट्रेशन है कि प्रमोशन है कि मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। मगर स्पेशल याद रखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आपका पार्टिसिपेशन है
रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट आज नॉन इलेक्टेड रोल, और बेसिकली वो किसके लिए काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या है ना, इसको सपोज जो आप इलेक्टेड मेंबर नहीं हो मगर उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें क्या है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको घर लेना है, सपोज मिलकर आपको एक लैंड लेना है और उसमें हाउस कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। मगर इस केस में आपको याद रखना है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो नॉन इलेक्टेड रोल, इसमें बेसिकली ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बेनिफिशियल के लिए है। आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और वो सोसाइटी में आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया और एक साथ यू वांट टू रिजाइड ऑल टुगेदर, ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यू कैन रिजाइड टुगेदर, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी ये दोनों केस में 1 मंथ विद इन, यदि इस तरीका का ये जो डी एंड ई याद रखिए, दोनों केस में विद इन 1 मंथ आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो फर्स्ट वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे कल्चरल हो, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे रिक्रेशनल सोसाइटीज, क्लब्स हो, आप नॉन इलेक्टेड मेंबर हो और आप पार्टी उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में आप हेल्प कर रहे हो, एक चीज है। और एक है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वहां पर भी आप उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू आर एक्सटेंडिंग हेल्प बट एज नॉन इलेक्टेड मेंबर। मगर उसमें क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का फेवर में है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर दे दिया, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसमें क्या है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का क्या है ना, इट मीन्स बिल्डिंग्स है, और सपोज 50-60 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का हाउसेस है और आप मिलकर एक सोसाइटी किया है, ठीक है। तो इस तरीके का केस यदि होता है तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है विद इन 1 मंथ, ठीक है। बट 2 कंडीशंस यहां पर आप थोड़ा याद रखो, यू मस्ट स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स यू स्टॉप। यदि गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देता है कि इस तरीका का एक्टिविटीज में, चाहे कल्चरल हो, साइंटिफिक हो, चाहे रिक्रिएशनल हो, जो नॉन इलेक्टेड मेंबर के हिसाब से आप वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसको बंद करो। और क्या है, जो ये जो 2 चीज में बताया, डी और ई, जैसे एक कल्चरल और साइंटिफिक और रिक्रिएशनल जो क्लब्स है, जो सोसाइटीज है, उसका रजिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, प्रमोशन के लिए आपका पार्टिसिपेशन है आज नॉन इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। जो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है विद इन 1 मंथ कि इस तरीके का एक्टिविटीज में मेरा पार्टिसिपेशन है आज नॉन इलेक्टेड मेंबर, तो उसमें आपका ऑफिशियल ड्यूटीज हम पर नहीं होगा। यही यदि आप इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑफिशियल ड्यूटीज हम पर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यदि इस तरीके का एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, ई में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का माने फेवर में काम करता है, ये मींट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज मींट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में आप हेल्प कर सकते हो आज नॉन इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो उसमें यदि आप ये 2 चीज जो बताया इसमें डी और ई में, तो विद इन 1 मंथ आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो नॉन इलेक्टेड मेंबर मींस आपका कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आप तो इलेक्टेड मेंबर नहीं हो। इलेक्टेड मेंबर होने से क्या है, आप बायोस हो जाते हो, आपका ऑफिशियल जो वर्क है उसमें इन्फ्लुएंस डालते हो, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर होने से थोड़ा आपका मॉनेटरी बेनिफिट, मगर यहां पर तो क्लियरली मेंशन कर दिया कि नॉन इलेक्टेड मेंबर हो आप, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है मैंडेटरी रिपोर्टिंग, यू मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट इफ एनी फैमिली मेंबर स्टार्ट्स ए बिजनेस और ऑन्स एन इंश्योरेंस और कमीशन एजेंसी। यदि आपका कोई फैमिली मेंबर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई इंश्योरेंस और कमीशन एजेंसी को रन कर रहा है, तब आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, मैंडेटरी रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये जो 15 ओके सब सेक्शन 3 में क्लियरली मेंशन है। और नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टिंग फीस विदाउट अप्रूवल।
आप कोई भी सपोज कुछ स्पेशल वर्क कर रहे हो आउटसाइड में और आपको कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है, तो वही फी है, ठीक है। जैसे पार्ट टाइम सपोज लेक्चर, ऑफिशियल ड्यूटी के बाद आप जाकर कोई कॉलेज में, ओके, कोई यूनिवर्सिटी में आप पार्ट टाइम इट मीन्स लेक्चर दे रहे हो और उसमें आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, वही फी है, ओके। वो विदाउट अप्रूवल, इस केस में गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, नहीं तो आप इस तरीके का फी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट टेक एनी फी फॉर वर्क डन फॉर एनी प्राइवेट बॉडी और पर्सन विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। और फी के ऊपर जो डेफिनेशन है फंडामेंटल रूल FR 9(6) है, इसको भी रूल पोजीशन को याद रखिए। FR 9 सबसेक्शन 6A में फी के ऊपर डेफिनेशन है। थोड़ा उसके ऊपर देखेंगे फी का डेफिनेशन। फी मीन्स एनी पेमेंट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एनी स्पेशल वर्कर सर्विस डन बाय हिम फॉर ए प्राइवेट पर्सन की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इवन फॉर अनदर पब्लिक बॉडी आउटसाइड हिज नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटीज। तो क्लियर हो गया, ये तो डेफिनेशन है। जो फंडामेंटल रूल 9(6)A में ये क्लियरली मेंशन है कि सपोज आप कुछ स्पेशल सर्विस की वर्क दे रहे हो, किसको, प्राइवेट पर्सन को, कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, एनी अदर पब्लिक बॉडी, चाहे कोई ऑटोनोमस बॉडी, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई लोकल बॉडी, ठीक है। आपका आउटसाइड ऑफ नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटीज जो नॉर्मल आवर होता है उसके बाद आप ये सर्विस दे रहे हो और कुछ रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हो, वही फी है। और इस तरीके का जो फी है आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। यही बोल रहा है 14 सबसेक्शन ए, सॉरी, इसको बोल रहा है रूल 15 सबसेक्शन 4, ओके, जो रिलेटेड टू द ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी मैं दे दिया, देखिए। फी के ऊपर पेमेंट फॉर ए लेक्चर, ए प्राइवेट कॉलेज इनवाइट्स ए गवर्नमेंट ऑफिसर टू गिव ए लेक्चर। कोई प्राइवेट कॉलेज ने आपको इनवाइट किया, गवर्नमेंट ऑफिसर को, आप वहां पर जाके लेक्चर दे दिया और 5000 रिसीव किया, ये फी में आएगा। तो इस तरीके आप ये फी को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। और एक एग्जांपल है, ए प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ए गवर्नमेंट ऑफिशियल टू कंडक्ट ए वर्कशॉप। कोई प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल को इनवाइट किया एक वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए और आपको 10,000 पेमेंट किया, ये भी फी में आएगा। तो इस तरीका का अमाउंट को आप रिसीव नहीं कर सकते बिकॉज ये फी में आ जाता है और विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एग्जामिनर। सपोज पार्ट टाइम, जैसे आप चाहे लेक्चरर हो, टीचर हो, और कोई सपोज असिस्टेंट प्रोफेसर हो कि प्रोफेसर हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में आप जाकर कॉपी चेक कर रहे हो पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम एग्जामिनर इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, तो ये परमिट होता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पार्ट टाइम लेक्चरशिप परमिट नहीं होगा। पार्ट टाइम लेक्चरशिप अमाउंट टू ए रेगुलर रेम्यूनरेटिव ऑक्यूपेशन अट्रैक्टिंग ए नीड फॉर सैंक्शन, इसमें सैंक्शन का जरूरत है। विदाउट सैंक्शन, विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आप पार्ट टाइम लेक्चरशिप नहीं कर सकते। पार्ट टाइम एग्जामिनर आप हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में सपोज जो एक कॉपी चेक होता है, आज एग्जामिनर यू गो एंड चेक द कॉपी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, परमिशन मिल जाता है। मगर पार्ट टाइम लेक्चरशिप में आप जाकर कुछ रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हो तो ये सैंक्शन का जरूरत है। विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आप इस तरीके का एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कि एक्सेप्टेंस ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो ये अलाउ नहीं होगा। ऑफिस आवर्स के बाद आप जाकर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो तो ये अलाउ बेसिक जनरली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और एक है जैसे प्रायर परमिशन नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग रेम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप सर्विस दे रहे हो और वहां पर आप रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हो, तो इसके लिए तो प्रायर परमिशन चाहिए। और यहां पर एक सवाल कर सकते हो कि सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली जो मीन्ड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आज नॉन इलेक्टेड मेंबर आप वहां पर एक्चुअली पार्टिसिपेट कर सकते हो उसका रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन की मैनेजमेंट में। मगर यहां पर दे दिया ऐसा कुछ नॉट मीन्ड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप सर्विस दे रहे हो और रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहे हो तो इसमें प्रायर परमिशन का जरूरत है। जैसे परमिशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग स्पेयर टाइम
to be given only to those holding recognized qualifications on a purely charitable basis without detriment to the official duties of the government concerned. जैसे जो डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, वो चैरिटेबल बेसिस में सर्विस दे सकते हैं आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स, ठीक है, और उसमें उनका ऑफिशियल ड्यूटीज हम पर नहीं होगा. सिमिलरली बार एसोसिएशन में आप मेंबरशिप हो सकते हो एज एन एडवोकेट, मगर आप खुद को लीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते. परमिटेड टू एनरोल हिमसेल्फ एज एन एडवोकेट. ओके, तो आप खुद को बार एसोसिएशन में एडवोकेट के आकार में आप खुद को एनरोल कर सकते हो, मगर आप लीगल प्रोफेशन में एंगेज आप खुद को नहीं कर सकते. ठीक है. Then next one, prior sanction is necessary to participate in any competition or social event organized by private companies or organizations. The primary objective of which is only to promote their business. कोई private companies और organizations कोई competition की social event organize कर रहा है और आपको वो invite कर रहा है क्योंकि उसका business promotion के लिए, तो उस केस में prior sanction चाहिए. Without prior sanction you cannot participate. Similarly, prior sanction necessary for contesting or canvassing in any elections in sports bodies. कोई sports bodies का जैसे इलेक्शन है, ओके, आप चाहे आप कॉन्टेस्ट करोगे इलेक्शंस टू स्पोर्ट्स बॉडीज और कोई कैंडिडेट को आप सपोर्ट करोगे, ये नहीं कर सकते विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो क्लियर. नेक्स्ट जो 15A रूल है, इसमें सबलेटिंग एंड वैकेटिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इस रिलेटेड रूल पोजीशन को याद कीजिए. रूल 15A, सबलेटिंग एंड वैकेटिंग गवर्नमेंट अकोमोडेशन. फर्स्ट वन, नो सबलेटिंग और गिविंग द हाउस टू अदर. सबलेटिंग मीन्स क्या है, किसको आपका जो गवर्नमेंट क्वार्टर है आप किसको रेंट में दे देना. ठीक है, कि सपोज चाहे कोई एनी अदर पर्सन को आप आपका हाउस को यूज करने, क्वार्टर को यूज करने के लिए दे दिया, चाहे एक रूम भी हो, चाहे पार्ट हो, होल ऑफ द क्वार्टर हो. ठीक है, चाहे उसमें आप रेंट चार्ज करो कि ना करो, तो इस तरीके का एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है. नो सबलेटिंग और गिविंग द हाउस टू अदर्स. यहां पर देख लीजिए, ए गवर्नमेंट सर्वेंट गेट्स ए गवर्नमेंट हाउस ओनली फॉर हिज ओन यूज. तो ओनली जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है, तो बेसिकली कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर वही रह सकते हैं. ही कैनॉट गिव इट ऑन रेंट टू समवन एल्स. आप रेंट के आकार में आपका क्वार्टर को और किसको नहीं दे सकते. कि अलाउ अनदर पर्सन टू लिव देयर इन हिज प्लेस. आपका जगह में और किसको आप अलाउ कर दिया रहने के लिए, ये नहीं हो सकता. ही कैनॉट बोल रहा है, ये नहीं हो सकता कि आप किसको लीज के आकार में दे दिया, लीज इट आउट और लेट समवन ऑक्यूपाई इट इनडायरेक्ट वे. आप किसको लीज के आकार में दे दिया और कोई इनडायरेक्ट वे में आपका क्वार्टर को ऑक्यूपाई करके रखा है, तो ये नहीं हो सकता. तो इसमें दिया है इन शॉर्ट, ओनली द अलॉटेड एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली कैन स्टे देयर. फैमिली मीन्स ओनली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स. कंसर्न एम्प्लॉय उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है वही रह सकते हैं. नो आउटसाइडर्स अलाउड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आपका जो क्वार्टर है एक रूम और किसको दे दिया, चाहे वो आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर नहीं है, एक रूम में आप जिस पर्सन को दिया है वो आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में नहीं है, वो भी सबलेटिंग में जाएगा. चाहे और किस पर्सन को आप दे दिया, ठीक है, और कोई पर्सन अनऑथराइजली रह रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए. इसमें क्या है ना, ये क्यों नहीं हो सकता, तो उसमें भी रीजन है. क्योंकि सपोज और कोई क्वार्टर को मिसयूज करेगा और किसको दे दिया मिसयूज करेगा, उसमें आपका जो ट्रांसपेरेंसी, जो ऑनेस्टी जो होता है आज गवर्नमेंट सर्वेंट, वो लूज होगा. ओके, आपका जो इमेज रेपुटेशन है वो खराब होगा. बाहर से पब्लिक बोलेंगे कि गवर्नमेंट क्वार्टर में आउटसाइडर्स रहते हैं. ठीक है कि नहीं. तो उसमें चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी हो, चाहे आपका रेपुटेशन हो, चाहे आपका इमेज हो, ओके, सब इस केस में क्या होगा, डाउन होगा, तार्निश होगा. ठीक है, तो कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन आप दे दिया और वो सस्पेक्टेड एक्टिविटी कर रहा है वो क्वार्टर में. ठीक है, तो इस तरीके का, तो इसलिए सबलेटिंग पूरा बंद है और किसी को नहीं दे सकते. ओनली फैमिली मेंबर एंड हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स. ओके, ओनली द कंसर्न एम्प्लॉय एंड हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, ओनली दे कैन रिजाइड इन द गवर्नमेंट क्वार्टर. ठीक है, ये फर्स्ट है रूल 15A सबसेक्शन 1. ठीक है, सेकेंड में देखेंगे, मस्ट वैकेट द हाउस
आफ्टर कैंसिलेशन, व्हेन द गवर्नमेंट कैंसल्स द अलॉटमेंट ऑफ द हाउस, यदि गवर्नमेंट आपका अलॉटमेंट जो क्वार्टर अलॉटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया, तो इमीडिएटली आपको वैकेट करना है। जो टाइम लिमिट है, विद इन टाइम लिमिट, जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो टाइम लिमिट दिया, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको वैकेट कर देना है, क्योंकि वो जो अलॉटमेंट आपका नाम पे था अभी वो कैंसिल हो गया। फॉर एग्जाम्पल कब ये होता है ना, ट्रांसफर जब आपका हो गया, कि रिटायरमेंट हो गया, कि आप जॉब से रेजिग्नेशन दे दिए, कुछ डिसिप्लिनरी रीजन है, इसके वजह से यदि आपको गवर्नमेंट नोटिस दे दिया कि आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो गया, उसको वैकेट कर दो, और ये आपको एक विद इन टाइम लिमिट के अंदर आपको उसको वैकेट कर देना है। द एम्प्लॉय मस्ट वैकेट द हाउस विद इन द टाइम गिवन बाय द अथॉरिटी। ये आपका रूल 15A सबसेक्शन 2 है। ठीक है, चलो अभी मैं बोला था 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज, लेटेस्ट पैटर्न एमसीक्यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू गिव ए गवर्नमेंट सर्वेंट ए वैलेडिक्टोरी एड्रेस ऑन स्टेज, कैन द ऑफिसर एक्सेप्ट इट विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन? एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या है ना, सपोज एनी गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल बॉडी, ओके, सभी क्या है कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये भी सपोज आपको वैलिडिटरी एड्रेस, कोई भी आपको वैलिडिटरी एक फेयरवेल एड्रेस है ऑन स्टेज, ये वैलिडिटरी एड्रेस ऑन स्टेज आपको, सपोज आपका फेयरवेल, आपको कोई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन प्लान किया कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट को इनवाइट करेंगे क्योंकि वो अभी रिटायरमेंट होने वाला है, कि अभी वो ट्रांसफर में चला जाएगा, कि लीव द जॉब, तो वो प्लान किया है, और वहां पर आपको एक क्या है ना, आपका फेयरवेल स्पीच रहेगा, और वो आपको प्रेज करेंगे आपका मेरिटोरियस सर्विस के लिए जो भी है। तो इसमें आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्लियरली देख लीजिए रूल 14, जो पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में, चाहे आपका ऑनर में, चाहे आपका कोई वैलिडिटरी एड्रेस है, कोई कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस है, कोई टेस्टिमोनी, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर आंसर देखिए, एस इफ इट इज सिंपल, एस इफ नो मनी इज इन्वॉल्व, नो इट नीड्स प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन, एस इफ द ऑफिसर डज नॉट स्पीक ऑन स्टेज, नो। ये ऑप्शन सी, यदि गवर्नमेंट सैंक्शन देता है, प्रायर परमिशन, यदि गवर्नमेंट सैंक्शन करता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। मगर इस तरीके का कैसे, कैन द ऑफिसर एक्सेप्ट इट विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन? विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन नो, इट नीड्स प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन। इस तरीके का केस में गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, colleagues organize a small private get together inside the office to bid farewell to an officer who is retiring, no outsiders are invited, तो परमिशन रिक्वायर्ड, इसमें परमिशन का जरूरत नहीं है, नो, इस केस में परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्राइवेट गेट टुगेदर कर रहे हैं आपका कलीग्स, क्योंकि आपका रिटायरमेंट होने वाला है, इसमें कोई आउटसाइडर्स तो इनवाइटेड नहीं है, नो आउटसाइडर्स इनवाइटेड, ओनली आपका कलीग्स एक छोटा फंक्शन कर रहे हैं, एक स्मॉल इनएक्सपेंसिव फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है आपका रिटायरमेंट टाइम में आपको फेयरवेल देने के लिए। तो इस केस में कोई आउटसाइडर्स का आउटसाइडर्स को इनवाइट नहीं किया गया, तो उसमें कोई परमिशन का, गवर्नमेंट परमिशन का, प्रायर परमिशन का जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए पब्लिक बॉडी conducts a simple and inexpensive function to appreciate a government servant service, is prior sanction needed? ये पब्लिक बॉडी में बार बार आता है, पब्लिक बॉडी में those type of bodies basically financially managed by the government, चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज, एनी गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई लोकल बॉडी जिसमें उसका मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। यदि वो एक सिंपल इनएक्सपेंसिव फंक्शन कंडक्ट कर रहा है और गवर्नमेंट सर्वेंट को अप्रिशिएट करने के लिए, मगर ये बहुत ही सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव फंक्शन, तो उसमें इज प्रायर सैंक्शन नीडेड? तो इसमें प्रायर सैंक्शन का कोई जरूरत नहीं चाहिए, ऑप्शन सी होगा, नॉट नीडेड इफ इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a government servant wants to attend a musical function arranged specifically to honor him,
बट नो गिफ्ट्स विल बी गिवन। परमिशन अच्छा देखिए, ऑनर, आपका ऑनर के लिए कोई म्यूजिक फंक्शन अरेंज कर रहा है और आप अटेंड करना चाहते हो, क्या उसमें परमिशन चाहिए? 100% आपका ऑनर के लिए। आप देख लीजिए, वो क्लियरली मेंशन है आपका रूल 14 में। चाहे आपका ऑनर में, चाहे आप कोई वैलिडिक्टोरी एड्रेस, कोई कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस, कोई टेस्टिमोनियल्स, ये सब अलाउ नहीं है। इसमें क्या चाहिए? प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट चाहिए। तो इसमें परमिशन नीडेड। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इसमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करना है। ठीक है, consider the following statements regarding public honors for government servants. A government servant cannot accept a public testimonial without prior government sanction. ये करेक्ट है। कोई भी पब्लिक, कोई सर्टिफिकेट है, कोई सेरिमोनियल गिफ्ट है, आप रिसीव नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन, करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अटेंड ए पब्लिक फंक्शन हेल्ड इन हिज ऑनर विदाउट प्रायर सैंक्शन इफ द फंक्शन इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये होने से भी गलत है, नहीं होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन अटेंड, नो, ये गलत है, क्योंकि आपका ऑनर में ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, चाहे वो सिंपल इन एक्सपेंसिव हो, तो उसको आप प्रायर परमिशन, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप उसको अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत है। ए प्राइवेट एंड इनफॉर्मल फेयरवेल ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉलीग्स डज नॉट रिक्वायर गवर्नमेंट सैंक्शन, ये तो मैं बोल चुका हूँ, ये करेक्ट है। तो यहां पर जो ऑप्शन है 1 और 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैनॉट रिसीव पब्लिक कॉम्प्लीमेंट्स और वैलिडिक्टोरी एड्रेसेस विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन, ये तो ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स में एक्सेप्ट inexpensive public entertainment arranged by public institutions without prior sanction. Government servants may accept inexpensive public entertainment arranged by public institutions without prior sanction, ये करेक्ट है। तो इस तरीके का हो सकता है, ये तो ऑनर में नहीं है, कोई आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पब्लिक कंपल्सरी पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, तो वो एक इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अरेंज कर रहा है। ठीक है, इसमें प्रायर परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स मस्ट ऑब्टेन सैंक्शन टू अटेंड ए प्राइवेट फेयरवेल ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द ऑफिस बाय क्लोज कॉलीग्स, तो इसमें कोई ऑब्टेन सैंक्शन पूछा है, ये तो इसमें कोई सैंक्शन का जरूरत नहीं है। तो उसमें इनकरेक्ट पूछा है, मीन्स 3 ओनली, ये करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। पब्लिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रेज और ऑनर्स फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्सेप्ट ए पब्लिक टेस्टिमोनियल इफ इट इज इनएक्सपेंसिव, नो, ये गलत है। कोई भी टेस्टिमोनियल्स आप रिसीव नहीं कर सकते, कोई भी टेस्टिमोनियल्स आप रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई आपका ऑनर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई वैलिडिक्टोरी एड्रेस, कोई कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस, सब नहीं हो सकता विदाउट प्रायर परमिशन। हाँ, एक है कोई पब्लिक बॉडी और इंस्टीट्यूशन, यदि कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में आपको इनवाइट करते हैं और वो सिंपल इनएक्सपेंसिव होता है, वो होगा, उसमें परमिशन का जरूरत नहीं है। मगर कोई पब्लिक बॉडी एक फंक्शन कंडक्ट कर रहा है, आपको इन्वाइट कर रहा है आपका ऑनर के लिए, नहीं होगा। तो ऑनर, वैलिडिक्टोरी एड्रेस, कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस, कोई टेस्टिमोनियल्स, ये सब आप कोई भी आप इस तरीके का फंक्शन आप अटेंड नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। ए सिंपल फेयरवेल अरेंज्ड बाय पब्लिक बॉडी विदाउट लाविश एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम सैंक्शन, तो ये ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट है 1 और 3 होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट को आप डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये डी जो है वो
1, 2 एंड 3 है, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी इवन इनडायरेक्टली विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन, कैनॉट एंगेज, ठीक है, विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन। तो गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट एंगेज, ये करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे नेगोशिएट फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विदाउट परमिशन आज लॉन्ग एज ही डज नॉट एक्सेप्ट द जॉब, नहीं ये गलत है। कोई भी नेगोशिएट आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हो विदाउट परमिशन, ये तो सही नहीं है, ये गलत है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट कंटेस्ट इलेक्शंस और होल्ड ऑन इलेक्टेड पोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट सैंक्शन, ओके, कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस विदाउट सैंक्शन, तो ये ठीक है। तो करेक्ट मीन्स 1 एंड 3 है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट कैनवास और प्रमोट इंश्योरेंस कमीशन और एजेंसी बिजनेस रन बाय फैमिली मेंबर्स, करेक्ट है। इवन इफ द फैमिली मेंबर्स एजेंसी इज स्मॉल और पार्ट टाइम, द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट स्टिल रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट, करेक्ट है। कोई भी फैमिली मेंबर सपोज का कोई कमीशन एजेंसी है, कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो इसको गवर्नमेंट सर्वेंट रिपोर्ट करना है, चाहे वो स्मॉल हो कि पार्ट टाइम हो, करेक्ट है। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फैमिली बिजनेस इज अलाउड इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन इट, ये नहीं, कोई फैमिली बिजनेस है मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट को रिपोर्ट करना है, चाहे आपका इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो ये दिया है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ फैमिली बिजनेस इज अलाउड, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये गलत है। तो इनकरेक्ट मीन्स ओनली 3 ओनली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर भी 3 स्टेटमेंट्स गिवन, करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे टेक पार्ट इन मैनेजमेंट नॉन इलेक्टेड रोल्स ऑफ रजिस्टर्ड कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सोसाइटीज विदाउट प्रायर परमिशन, ये करेक्ट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिस्टिंग मेनली ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विदाउट सैंक्शन, ये भी करेक्ट है, मगर दोनों केस में गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है विद इन 1 मंथ। इन बोथ केसेस द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट इन्फॉर्म द गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है, करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे, क्लियर, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट टेक पार्ट इन एनी प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड टीवी और रेडियो प्रोग्राम विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन, ये ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे पार्टिसिपेट इन ए गवर्नमेंट कमीशन प्रोग्राम इवन इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट प्रोडक्शन हाउस, नो, ये गलत है, मे पार्टिसिपेट किया है ना, नो, ये गलत है। गवर्नमेंट प्रोग्राम है मगर उसको प्रोड्यूस कर रहा है प्राइवेट एजेंसी, तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स बाय प्राइवेट स्पॉन्सर्स रिक्वायर गवर्नमेंट परमिशन इवन इफ द पार्टिसिपेशन इज फ्री, ये करेक्ट है, चाहे वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है प्राइवेट स्पॉन्सर्स का और इसमें कोई ये फ्री है, पार्टिसिपेशन फ्री है, मगर फिर भी गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो इनकरेक्ट मीन्स ओनली 2 होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग acceptable activities without sanction. 3 statements given. A government servant may help charitable organizations in honorary work without permission, ये correct है। Writing books or articles occasionally can be done without sanction, ये correct है। Playing professional sports for money is permitted without sanction, no, वही ऑन प्रोफेशनल है, सपोज आप आज एन अमेचर, कोई आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर प्लेइंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फॉर मनी इज परमिटेड विदाउट सैंक्शन, नो, ये गलत है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट 1 and 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फीस के ऊपर है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट ऑब्टेन प्रायर सैंक्शन बिफोर एक्सेप्टिंग एनी फी फ्रॉम ए प्राइवेट बॉडी और पर्सन, करेक्ट है। Fee includes any payment for work done if it is occasional or voluntary, correct है। Fee does not include remuneration for literary or artistic work,
ठीक है। नो नो, ये गलत है। जो आप लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क में, चाहे लिटरेरी हो, चाहे आर्टिस्टिक वर्क हो, चाहे साइंटिफिक वर्क हो, इसमें आपको जो रेमुनरेशन मिल रहा है वो फी में इंक्लूड होगा, फी में इंक्लूड होगा, मगर ये फी डज नॉट इंक्लूड। ओके, तो ये गलत है, क्योंकि चाहे आप लिटरेरी वर्क, चाहे आर्टिस्टिक वर्क, चाहे साइंटिफिक वर्क, इसमें आपको कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है, मीन्स मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, मीन्स वो फी में इंक्लूड होगा, मगर यहाँ पर फी डज नॉट इंक्लूड, ये गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, मीन्स 1 and 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखिए असर्शन एंड रीजनिंग। ओके, ए जो है असर्शन है, आर जो है रीजन है। अच्छा, ए में क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट नेगोशिएट फॉर एनी पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विदाउट प्रायर गवर्नमेंट सैंक्शन, ये करेक्ट है। नेगोशिएटिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट में कॉम्प्रोमाइज द इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी करेक्ट है, रीजन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, आप कोई जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, और फिर आप नेगोशिएट कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें आप इम्पार्शियल नहीं हो। ओके, आपका इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज होगा, क्योंकि आप जॉब में हो, फिर आप और एक जॉब के लिए नेगोशिएट कर रहे हो, तो आपका इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, आपका ट्रांसपेरेंसी, आपका ऑनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ओके, पब्लिक तो आपके ऊपर सस्पेक्ट करेंगे कि नहीं? पब्लिक तो क्वेश्चन रेज करेंगे आपके ऊपर, तो आपका जो रेपुटेशन, डिग्निटी खराब होगा। तो यहां पर जो है, जो असर्शन है, उसका करेक्ट रीजन है आर। तो बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगेन असर्शन रीजन। असर्शन में है गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट टेक पार्ट इन द प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ ए कमर्शियल कंपनी, एब्सोल्युटली करेक्ट। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर अलाउड to take part in the management of any society if it is registered. Government servants are allowed to take part in the management of any society if it is registered. नो नो, गलत है, any society ये नहीं है। मैं बोला था जो कल्चरल है, कल्चरल, साइंटिफिक, ठीक है, चैरिटेबल, रिक्रिएशनल, इस तरीका का सोसाइटी, नॉन इलेक्टेड मेंबर आप होना चाहिए, और उसका मैनेजमेंट, प्रमोशन और रजिस्ट्रेशन में आपको हेल्प करना है। मगर आज नॉन इलेक्टेड मेंबर तो है, इस तरीके का एक्टिविटी में आपको गवर्नमेंट को 1 month के अंदर रिपोर्ट करना है, मगर एनी मैनेजमेंट ऑफ एनी सोसाइटी नो। और एक था कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, जो स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। आज नॉन इलेक्टेड मेंबर आप उसको प्रमोशन कर सकते हो, उसका मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, मगर उसको 1 month के अंदर रिपोर्ट करना है। तो यहां पर जो है क्लियर हो गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन असर्शन रीजन। ए गवर्नमेंट सर्वेंट may participate in non-elected roles in registered cultural, scientific और recreational societies, करेक्ट है। such societies, रीजन दिया है, such societies are permitted only if they are not formed for profit or commercial gain, ये भी करेक्ट है। और both A and R are true and are correctly explanation of A, क्योंकि इस तरीके का जो सोसाइटी कल्चरल है, कि साइंटिफिक है, कि रिक्रिएशनल है, आज नॉन इलेक्टेड मेंबर आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन में, कि उसका प्रमोशन के लिए, कि उसका मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है इसमें, तो ये होता है, और उसमें कोई प्रॉफिट और कमर्शियल गेन तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट वन। क्वेश्चन 17, a government servant, again assertion reason, a government servants may accept payments for literary or artistic work without permission, may accept payments for literary or artistic work without permission, ये गलत है। all payments received from private organizations are considered fees under fundamental, ये तो करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो उसमें ए फॉल्स होगा, आर ट्रू होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, again assertion reason, a government servant may write scientific or academic articles occasionally without sanction, ये correct है. Occasional literary, scientific or artistic work is permitted if it does not interfere with official duties. तो ये A and R ये होगा, both A and R are true and are the correct explanation of A. Option A is the correct answer. ठीक है. Question number 19, a government servant participates in a registered cultural society's management. What is true? Always prohibited. Allowed only if the role is non-elected and non-commercial. Allowed only after prior sanction. Allowed even if the society earns profit. तो यहाँ पर क्या है? Allowed only if the role is non-elected and non-commercial. तो इस तरीके का रजिस्टर्ड कल्चरल सोसाइटी में क्या होता है, जैसे ड्रामा है, आर्ट है, म्यूजिक है, ठीक है, तो इस तरीके का मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आज नॉन इलेक्टेड मेंबर, और इससे आपको नॉन कमर्शियल है, आपको कोई प्रॉफिट मिलने वाला उसमें नहीं है, मगर इसमें कुछ लोगों को बेनिफिट मिलता है, कुछ चिल्ड्रन को बेनिफिट मिलता है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20, ए गवर्नमेंट सर्वेंट गिव्स ए पेड लेक्चर एट ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पेड लेक्चर मीन्स आपको कुछ रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो वो तो फी है. Allowed if less than 5,000, allowed without sanction, allowed only with prior sanction since fee is involved. ये इस तरीके का केस में आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये फी है, ठीक है, तो फी केस में आपको गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन चाहिए. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अलाउज हिज फ्रेंड to stay in his allotted government quarter for 3 months while he lives elsewhere. This is permissible if no rent is charged, permissible without prior permission, violation of rule 15A, permissible if the friend is a government servant. No, option C, violation, क्योंकि क्लियर मेंशन है ओनली आपको जो गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है ओनली द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट एंड हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, उसके अलावा और कोई भी नहीं रह सकता. चाहे आप सबलेट कर दिया, एक रूम आप दे दिया किसी को, वो आपका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर नहीं है, वो भी अलाउ नहीं है, याद रखिए. ओनली कंसर्न एम्प्लॉय एंड हिज डिपेंडेंट फैमिली मेंबर रह सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रह सकता, ठीक है. तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 22, गवर्नमेंट कैंसल्स द अलॉटमेंट ऑफ ए क्वार्टर ऑन द एम्प्लॉयज रिटायरमेंट, द एम्प्लॉय मस्ट वैकेट. तो इसमें तो जैसे आपका रिटायरमेंट हो गया, आपका क्वार्टर अलॉटमेंट को गवर्नमेंट कैंसिल कर दिया, तो जो टाइम लिमिट दिया है विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अलॉटिंग अथॉरिटी आपको वैकेट करना है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आपका क्वार्टर को वैकेट करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स गिवन. देखिए वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, इसे दिया है. गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट सबलेट और लीज द गवर्नमेंट अकोमोडेशन अलॉटेड टू हिम, ये करेक्ट है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट में अलाउ हिज फ्रेंड टू स्टे इन द गवर्नमेंट अकोमोडेशन इफ नो रेंट इज टेकन, गलत है. अलाउइंग एनीवन टू ऑक्यूपाई द अलॉटेड क्वार्टर इवन विदाउट चार्जिंग रेट, अलाउइंग एनीवन टू ऑक्यूपाई द अलॉटेड क्वार्टर इवन विदाउट चार्जिंग रेट इज प्रोहिबिटेड, ये करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 and 3 करेक्ट वन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24, again 3 statements given, correct statement dictate करेंगे. कीपिंग ए गवर्नमेंट क्वार्टर लॉक्ड आफ्टर ट्रांसफर, कीपिंग ए गवर्नमेंट क्वार्टर लॉक्ड आफ्टर ट्रांसफर इज नॉट कंसिडर्ड ए वायोलेशन, गलत है, वायोलेशन है. आपका ट्रांसफर हो गया और आप लॉक करके चले गए, तो ठीक नहीं है, वायोलेशन है. ए गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट वैकेट द क्वार्टर वंस अलॉटमेंट इज कैंसल्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज ऑक्यूपाइड और लॉक्ड, ये करेक्ट है. Even permitting temporary occupation by relative is prohibited. Yes, it is correct one. Even permitting temporary, कोई भी टेम्पररी पीरियड के लिए नहीं रह सकता कोई रिलेटिव, ठीक है. तो उसमें करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट पूछा है मीन्स 2 and 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. क्लियर. चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का. 3 statements given. Allowing another person to occupy even one room of the allotted accommodation counts as violation. करेक्ट है. एक ही रूम आपका जो गवर्नमेंट क्वार्टर है, एक रूम यदि आप अनदर पर्सन को दे दिया तो वो भी वायोलेशन है. सबलेटिंग इंक्लूड्स गिविंग ए पोर्शन ऑफ द हाउस टू ए कलीग, करेक्ट है.
Government accommodation can be given temporarily to a visitor for more than 30 days. नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आई एंड डबल आई बोथ आर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है ना, गवर्नमेंट अकोमोडेशन कैन बी गिवन, किसी को नहीं दे सकते आपका अकोमोडेशन। सबलेटिंग इंक्लूड से गिविंग ए पोर्शन ऑफ द हाउस, आप किसको दे दिया अभी, वो भी सबलेटिंग में आएगा। अनदर पर्सन टू ऑक्यूपाई इवन वन रूम ऑफ द अलॉटेड अकोमोडेशन काउंट्स एज वायलेशन। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। तो ये 25 क्वेश्चंस था, ठीक है। अभी कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से देख लेंगे। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रूल 15A रिगार्डिंग सबलेटिंग ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। व्हाई इज सबलेटिंग प्रोहिबिटेड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स? व्हाई इज सबलेटिंग प्रोहिबिटेड मीन्स आप कोई आपका गवर्नमेंट क्वार्टर जो मिला है, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉई और उसका जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर रह सकते हैं, आप और किसको नहीं दे सकते। और किसको आप दे दिया तो उसमें क्या होता है ना, आपका जो इंटीग्रिटी है, जो सर्विस इंटीग्रिटी है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है, आपका जो ट्रांसपेरेंसी है, आपका जो पब्लिक इमेज है, आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये सब तारनिश होता है। आपका जो रेपुटेशन है वो खराब, ये सब खराब होता है, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छे से पॉइंट देकर आपको लिखना है। डिस्कस द ओब्लिगेशंस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस में ऑल फॉलो if the servant fails to vacate the premises within the prescribed time limit। prescribed time limit में आप क्वार्टर वैकेट नहीं किया तो आपसे जो चार्ज लिया जाएगा, तो पेनाल्टी चार्ज लिया जाएगा। यदि आप फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, यदि फिर भी आप वैकेट नहीं करते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द मीनिंग ऑफ सबलेटिंग और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन। सबलेटिंग मैंने क्या है, चाहे आप आपका जो गवर्नमेंट क्वार्टर को सपोज किसको रेंट क्या कर में दे दिया, कि और आउटसाइडर को दे दिया विदाउट रेंट, कोई पार्ट ऑफ द क्वार्टर को आप कोई एनी अदर पर्सन को दे दिया, तो इस तरीके के उसको सबलेटिंग बोलते हैं। अनऑथराइज क्या है, आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है, आपका जो ट्रांसफर हो गया, कि रिटायरमेंट हो गया, कि आप रेजिग्नेशन दे दिए, आपका क्वार्टर अलॉटमेंट कैंसिल हो चुका है, फिर भी आप उसको वैकेट नहीं कर रहे हो, वो अनऑथराइज है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रैशनल बिहाइंड प्रोहिबिटिंग पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एंड टेस्टिमोनियल्स इन ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हाउ डू सच रेस्ट्रिक्शंस हेल्प मेंटेन इंटीग्रिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ द सिविल सर्विस। इसको आपको पॉइंट देकर लिखना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब डिस्कस में कर चुका हूँ। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी एड्रेस, वैलिडिक्टोरी एड्रेस एंड टेस्टिमोनियल्स, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रूल। व्हाई डज द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन प्रायर सैंक्शन बिफोर ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन एक्सेप्ट देम। दिस क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर रूल 15(1)। ये जो ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, प्रायर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप उस तरीके का एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। एक्सप्लेन हाउ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन in business, trade, canvassing or elective offices can lead to conflict of interest with public duties. Describe the rationale behind prohibiting government servants from holding elective offices or canvassing for candidates. How does this promote political neutrality of the civil service? Or discuss the restrictions placed on participation in the promotion or management of companies, banks and cooperative societies. Why are commercial purpose organizations specially restricted? Rule 15 prohibits government servants from participating in privately sponsored media programs without sanction. Explain the significance of such a restriction in maintaining service discipline and public trust. Elaborate the conditions under which a government servant may take part in registered societies, clubs, cooperative societies or cultural or recreational organizations. Why must such participation be non-elective? तो ये सब क्वेश्चंस है, उसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ। थोड़ा क्वेश्चन सोचिए, पॉइंट के हिसाब से आप लिखिए। मैं थोड़ा बोल दिया था कि पैटर्न कैसे क्वेश्चन आ रहा है, मगर सबका आंसर मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो आज इतना ही है। तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, so that you can get notification for my upcoming videos. You join my Telegram channel so that you can get also notification for my upcoming videos. आज इतना ही है। थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।